Good morning, students. In the previous class, we have discussed about the arc welding. Now, the diagram is in front of you. First, we will revise the previous so that we can link to the next topic. So, in arc welding, there are basically two elements, parent metal and the electrode. And here is the arc, this one is the arc. Here is the arc, okay, and direction of welding is in this way. Here is the deposited metal and depth of fusion is this one. So now in the coming lecture we will discuss about the types of arc welding. So basically there are two types of arc welding depending upon the type of current we are using to produce the intense heat for welding. So this is AC arc welding and DC arc welding. So the figure is in front of you, the difference between AC arc welding and DC arc welding. So in AC arc welding we are using what? We are using alternating current that is AC. Whereas in case of a DC arc welding we are using a direct current having the same polarity, positive or negative. And we have discussed that in case of a DC arc welding we are connecting positive terminal to the workpiece and negative terminal to the electrode, because more heat is generated at the positive pole, approximately 2/3, that is say you can say 67% approximate heat is produced at the workpiece. Second difference is in AC welding transformer is used, which is cheaper and simple in operation. In case of a DC we are using generator set, which is costly and its operation is more, you can say, comparatively some difficult. Now third difference between AC and DC arc welding. In AC arc welding, as we are using transformer, so its maintenance cost is less and its maintenance is also easy because it has no moving parts. But in case of a DC arc welding, maintenance cost is high because it involves a number of moving parts. Now fourth difference, in AC arc welding efficiency of the transformer is high, whereas in case of a DC arc welding efficiency of the generator is less as compared to the transformer. Now no load voltage in case of a AC arc welding is too high, whereas in case of a DC arc welding no load voltage is low, means when we are not using welding, so it is safer. Now next difference is striking the arc particularly with the electrode is relatively difficult in case of a AC arc welding, because the polarity gets changed after every half cycle. In this is the symbol, you can say it is like just a sine wave in case of a alternating current, whereas in case of a DC it is like this, continuous straight line. So it is easy to strike the arc even with the thin electrodes in case of a DC arc welding, because the polarity during the welding process is constant unless we change it. And we already say that we are connecting positive terminal to the workpiece and negative terminal to the electrode. Now next difference is
arc blow is not there in case of a AC welding. It is very important. Arc blow. Arc blow means arc is deflected upward, forward or backward uh, in place of uh, the desired spot of hitting. मीन्स आर्क जो है हमारी जहाँ पर स्ट्राइक करनी चाहिए उससे थोड़ी सी आगे या थोड़ी सी पीछे चलेगी इन केस ऑफ AC आर्क वेल्डिंग। तो आर्क ब्लो जो है हमारा AC वेल्डिंग में नहीं होता। बट इन केस ऑफ DC आर्क वेल्डिंग बिकॉज द पोलैरिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो आर्क ब्लो हमें एग्जिस्ट करता है ये डिफेक्ट, और इसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं इन केस ऑफ DC आर्क वेल्डिंग। Now next is bare electrodes cannot be used in AC arc welding. bare का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई फ्लक्स की कोटिंग ना हो, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम बेयर इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं और वो हम AC आर्क वेल्डिंग में यूज़ नहीं कर सकते। बट DC आर्क वेल्डिंग में हम बेयर, बिना कोटिंग वाले और कोटिंग वाले दोनों इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस इज पोलैरिटी कंसेप्ट इज़ नॉट प्रेजेंट। पोलैरिटी कंसेप्ट का मतलब है कि यहाँ पर आफ्टर एवरी हाफ साइकिल हमारी पोलैरिटी गेट्स चेंज, कि वर्क पीस आधे साइकिल में पॉजिटिव पोल से कनेक्ट होगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट होगा। बट इन केस ऑफ ए DC welding it is always fixed. As I have already discussed that workpiece is connected to the positive terminal and generally electrode is connected to the negative terminal in most of the cases, and it is always fixed unless we change it. Welding, next difference is in case of a AC arc welding, welding of non-ferrous metal is not possible. But in case of a DC arc welding, welding of non-ferrous metals is possible. And AC is more dangerous, DC is comparatively less dangerous. एक दो डिफरेंस और भी दिए हुए हैं, यू कैन रीड बाय योर ओन. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन AC arc welding and DC arc welding. This is one of the important questions from final paper point of view. So please read it carefully. Okay. About the आर्क वेल्डिंग मशीन, कि हमारी आर्क वेल्डिंग मशीन चाहे हम AC करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू यूज़ करें, चाहे हम जनरेटर से DC करंट यूज़ करें, हमारी जो आर्क वेल्डिंग मशीन है उसका जनरल सेटअप क्या रहता है. सो दिस इज़ द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, कि चाहे हम AC करंट यूज़ करें, चाहे अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट DC करंट यूज़ करें, तो दो तरह की मशीन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ करंट्स वी आर यूजिंग. In early days we were using the DC welding machines, but nowadays we are frequently using alternating current welding machines. And because in AC welding we have discussed that nowadays flux coated electrodes, इलेक्ट्रोड बेयर जो था उसके ऊपर एक फ्लक्स की कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम AC वेल्डिंग मशीन जो हैं कॉमनली यूज़ कर रहे हैं. और वेल्डिंग मशीन में हमारी जो लो वोल्टेज और हाई करंट, हाई एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट यू कैन से वी आर यूजिंग, और इसकी रेंज भी रहती है अप्रॉक्सीमेटली कि हमारे पास से पीछे सप्लाई हमारी 220 वोल्ट या 440 वोल्ट आ रही है, तो इसको हम जनरली वेल्डिंग मशीन की हेल्प से 40 से 100 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क पीस, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पीसीज, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो वी कैन सेट. सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम वेल्डिंग मशीन. तो इससे हमारे पास एक हमारा ये वर्क पीस है जिसको हमने वेल्ड करना है,
इसको हमने एक पोलैरिटी ग्राउंड केबल बोलते हैं, उसकी हेल्प से ग्राउंड कनेक्शन कर रखा है, और दूसरा जो सिरा है इसमें से करंट पास कर रहा है ये, और इलेक्ट्रोड होल्डर्स में इलेक्ट्रोड होल्ड करके इसको, इस केबल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड केबल। तो इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड होल्ड करके ये हम आर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक जनरल सा डायग्राम है, यू कैन सी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी वेल्डिंग मशीन्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी वेल्डिंग मशीन्स। तो हमारी जो एसी वेल्डिंग मशीन्स मैंने कहा कॉमनली यूज़ कर रहे हैं बिकॉज एसी सप्लाई इज़ फ्रीक्वेंटली अवेलेबल इन आवर वर्कशॉप्स, हाउस होल्ड एंड शॉप्स, you can say market shops and industries also. सो एसी वेल्डिंग मशीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो कुछ फ़ायदे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एसी वेल्डिंग सेट्स जो हैं इनकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, डिज़ाइन सिंपल है, मोर एफिशिएंट है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑफ आर्क ब्लो। ये एक तरह से डिफेक्ट है, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्क ब्लो क्या होता है। तो ये इफ़ेक्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता आर्क ब्लो एसी आर्क वेल्डिंग मशीन्स में। फिर हमने कहा इसमें हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, तो इसीलिए इसकी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है, एंड मूविंग पार्ट्स नहीं है तो नॉइस भी बहुत कम होती है। द एसी ट्रांसफार्मर में बी यूज इन द ओपन विदाउट एनी फर्दर प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर, कि हम ये ओपन अंडर द स्काई भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आर्क इज़ अनस्टेबल विच मेक्स द वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स ए लिटल बिट डिफ़िकल्ट, कि नॉन फेरस मेटल्स को थोड़ा वेल्डिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि हमने डिफरेंस में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है नॉन फेरस मेटल्स की जो वेल्डिंग करना इन केस ऑफ एसी वेल्डिंग मशीन डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, एसी वेल्डिंग सेट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेंजरस दैन डीसी सेट्स एज द इलेक्ट्रिक शॉक हैजर्ड इज़ मोर प्रोनाउंस्ड विद एसी, कि हमारे पास वेल्डर को या उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो वेल्डिंग कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, बट डीसी के केस में ऐसा कोई डिसएडवांटेज एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमारे पास एसी वेल्डिंग मशीन में हम थिन शीट मेटल्स को वेल्ड नहीं कर सकते, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, वो स्किल्ड ऑपरेटर ही कर सकता है, बट इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इन केस ऑफ एसी आर्क वेल्डिंग। So these are some of the advantages and disadvantages of AC arc welding. On the screen you can see that what are the equipments and accessories. The list is in front of you. Some of you might be familiar with these कि गोगल्स की वेल्डिंग करने वाला जो आदमी है, हमारा वेल्डर है या ऑपरेटर है, उसको कौन कौन से इक्विपमेंट्स और एसेसरीज यूज़ करनी चाहिए ड्यूरिंग वेल्डिंग, या ताकि हमारी वेल्डिंग ऑपरेशन सेफ हो और साउंड हो। तो लिस्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, हमने कुछ नाम दिए हैं कि गोगल्स, फेस शील्ड, एप्रन, हैंड ग्लव्स, क्लीनिंग टूल्स, इलेक्ट्रोड होल्डर, वेल्डिंग स्क्रीन, वेल्डिंग लीड्स, ground clamps, weld gauges. So we will discuss one by one. So first of all I can take first what is goggles. Goggles क्या होते हैं कि वेल्डर को वेल्डिंग करने के टाइम अपनी आईज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वेल्डिंग करने के दौरान जो हमारी कुछ ये ऐसे कह लीजिए कि स्लैग पार्टिकल्स या स्पैटर बोलते हैं, और ग्लेयरिंग लाइट की वेल्डिंग करने से जो एक ग्लेयरिंग, एक चमक, एकदम अचानक चमक जो पैदा हो रही है,
या अल्ट्रा वायलेट रेज कुछ प्रोड्यूस हो रही हैं, उनसे बचाने के लिए वेल्डर को हमेशा गॉगल्स डालने चाहिए। और जनरली ये कह रहा है गॉगल्स का हमारा ऐसे होते हैं कि उनका डायामीटर से इसमें दे रखा है, जैसे बुक में 50 mm डायामीटर से ज़्यादा होना चाहिए उनके ग्लास का, गॉगल्स में जो ग्लास डले हुए हैं। और जनरली एक हेड बैंड के साथ अटैच होते हैं, ताकि अगर किसी गॉगल्स आर नॉर्मली डिज़ाइन विद ए लार्ज इनफ फ्रेम, एक फ्रेम के साथ अटैच होते हैं कि किसी आदमी ने मान लीजिए चश्मा पहन रखा है तो वो उसके ऊपर भी गॉगल्स डाल सकता है। इस तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो सेकंड इज़ फेस शील्ड। फेस शील्ड क्या चीज़ है? फेस शील्ड मीन्स वेल्डर के फेस को बचाने के लिए जो हम शील्डिंग या कवर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेस शील्ड। तो ताकि हमारी वेल्डिंग करने के टाइम जो ब्रिलियंट लाइट या कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, ये जनरली इनविजिबल होती हैं बट वेरी हार्मफुल होती हैं आईज एंड स्किन के लिए, तो उससे आई बर्न को बचाने के लिए फेस शील्ड डाला जाता है। और ये जनरली दो तरह के होते हैं, हेलमेट टाइप एंड हैंड शील्ड। हेलमेट टाइप का मतलब है कि शील्ड हमारी सिर के ऊपर डाल लेंगे और दोनों ऑपरेटर के हैंड्स फ्री रहेंगे। बट जो हैंड शील्ड होता है उसमें ऑपरेटर को से लेफ्ट हैंड में हैंड शील्ड को पकड़ना पड़ेगा, तो उसका एक हाथ जो है ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो ये दो तरह की होती हैं। तो नेक्स्ट इज़ थर्ड पार्ट इज़ एप्रन। एप्रन क्या होता है? एप्रन बेसिकली एक, जैसे लेडीज़ किचन में काम करने के टाइम एक आगे कपड़ा सा अपने आगे डाल लेती हैं ताकि उनके कपड़े ख़राब ना हो ड्यूरिंग फूड मेकिंग, या किचन में काम करती है, या हमारे चेफ्स डाल लेते हैं। तो इसी तरह से वेल्डिंग करने के लिए भी हमारे पास एक एप्रन होता है, जनरली लेदर का बना होता है और या एस्बेस्टॉस का बना होता है, कि उसके कपड़ों पे कोई हानि ना हो या उसकी स्किन पे कोई चिंगारी या इस तरह से स्पैटर, उड़ते हुए स्पैटर ना गिरे। तो मीन्स बेसिकली दिस इज़ फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्डर फ्रॉम हार्मफुल, यू कैन से slag, स्पैटर और फ्लाइंग स्पैटर्स यू कैन से। नेक्स्ट इज़ हैंड ग्लव्स। तो हैंड ग्लव्स क्यों डाले जाते हैं? जनरली ये हैंड ग्लव्स ताकि हाथों की सुरक्षा के लिए फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज, फ्लाइंग स्पार्क्स, स्पैटरिंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए ये हमारे हैंड ग्लव्स लेदर और एस्बेस्टॉस मटेरियल के बने होते हैं। और जनरली इनके एंड पे एक इलास्टिक बैंड होना चाहिए ताकि ये एक टाइट सील की तरह काम करे, हैंड ग्लव्स और शर्ट स्लीव के। तो नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग टूल्स। तो इसमें हमारे पास जनरली दो टूल्स आते हैं, दो टूल्स आते हैं, एक चिपिंग हैमर एंड ए वायर ब्रश। ये चिपिंग हैमर बेसिकली वेल्डिंग करने के बाद स्पैटर जो छोटे छोटे दाने से चिपक जाते हैं वेल्ड मेटल के, और स्लैग जो इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं वेल्डिंग के वेल्ड जॉइंट के ऊपर, उनको रिमूव करने के लिए चिपिंग हैमर यूज़ किया जाता है। ये चिपिंग हैमर बेसिकली डबल एंडेड होता है, उसके एक एंड पे पॉइंटेड एंड होता है और दूसरे एंड पे एक फ्लैट चीज़ल बनी होती है। तो इसकी हेल्प से हम स्लैग और इम्प्योरिटीज़ या स्पैटर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक वायर ब्रश भी यूज़ करते हैं जिसमें स्टील की वायर्स होती हैं ताकि लूज स्पैटर को रिमूव किया जा सके उसके आसपास के एरिया में, वेल्डिंग एरिया के। और जो हमारा ब्रश है ये ऑयल, ग्रीस, डस्ट, रस्ट, पेंट, कोई भी एक्स्ट्रा अनफॉरेन पार्टिकल जो चिपका हुआ है वर्क पीस की सरफेस के ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो सी दीज आर द टू क्लीनिंग टूल्स, ए चिपिंग हैमर एंड ए वायर ब्रश ऑफ स्टील वायर। तो नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोड होल्डर। अब इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है? तो हम पहले एक फिगर देख लेते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड होल्डर। ये था हमारे पास चिपिंग हैमर, ये वायर ब्रश, ये हैंड शील्ड, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड होल्डर। तो जैसा कि इसका नाम है,
इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए जो डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड होल्डर, कि हमारा वेल्डर इसको अपने से राइट हैंड में होल्ड करेगा और इस इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड होल्डेड है, इलेक्ट्रोड में भी बेयर और कोटेड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका भी कुछ मैनुअल मतलब वेल्डिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। तो इसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसा कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भारी हो, इट शुड बी लाइट इन वेट, ठीक है ना। और उसको होल्ड करने के टाइम वेल्डर को कुछ अनबैलेंसिंग सी ना लगे, मीन्स बैलेंस सा डिज़ाइन होना चाहिए, उसका बैलेंस फीलिंग लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि केबल के थ्रू उसका हाथ ही गर्म हो जाए, तो हीट को रेजिस्ट करना चाहिए, ओवर हीटिंग ना हो इसकी। इसका डिज़ाइन कुछ यहाँ आगे से ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड को ईजिली होल्ड कर सके और जल्दी से जब इलेक्ट्रोड हमने चेंज करना है तो ईजिली रिमूव कर सके। तो स्प्रिंग कंट्रोल्ड होल्डर होना चाहिए। और जहाँ पर हमने वेल्डर ने इस इलेक्ट्रोड होल्डर को होल्ड किया हुआ है वहाँ पर शील्डिंग होनी चाहिए हैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए। और अगर हम कॉन्टीन्यूस काम कर रहे हैं, से वेल्डर कॉन्टीन्यूस काम कर रहा है घंटा 2 घंटे, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए इसमें जनरली कुछ इलेक्ट्रोड होल्डर वाटर कूल्ड भी हो सकते हैं। इसके चारों तरफ हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं ताकि जो ओवर हीटिंग ना हो। तो ये थे कुछ डिज़ाइंस। फिर है हमारे पास वेल्डिंग स्क्रीन, नेक्स्ट टॉपिक है। इसी में नेक्स्ट इक्विपमेंट कौन सा है, वेल्डिंग स्क्रीन। तो ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस जो है हमारी वेल्डिंग स्क्रीन मीन्स एक वेल्डिंग एरिया बना देते हैं कि मान लीजिए फ्लोर पे उसने वेल्डिंग करनी है, तो फायर रेजिस्टेंट हमारी कैनवस पेंटेड जिसके ऊपर ब्लैक या ग्रे कलर का पेंट किया हो एक फ्रेम से लगा देते हैं 3 साइड पे कि ये हमारा वेल्डिंग एरिया है, तो इसको वेल्डिंग स्क्रीन बोलते हैं। ये भी ये है कि साथ में कोई और काम हो रहा है या दूसरा वर्कर काम कर रहा है, उसको ये ग्लेयर लाइट प्रभावित ना करे, उसको मतलब रजिस्ट ना, यू कैन से उसके काम में बाधा ना बने, ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे। ओके, तो नेक्स्ट इज वेल्डिंग लीड्स। हमारे पास मैंने कहा 2 केबल्स हम यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग 2 केबल्स। पहली केबल हमारी हमने फिगर देखा था कि इलेक्ट्रोड लीड बोलते हैं, कि जो हमारी वेल्डिंग या तो ट्रांसफार्मर है या एसी के केस में और डीसी के केस में जनरेटर है, तो एक केबल जो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट की जाती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड लीड। दूसरी हमारी होती है ग्राउंड लीड या वर्क आर्क ग्राउंड लीड बोलते हैं उसको, जो कि वर्क पीस से कनेक्टेड की जाती है क्लैंप की हेल्प से, ठीक है ना। और इस तो दो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रोड लीड एंड ग्राउंड वर्क आर्क ग्राउंड लीड। ओके, तो इसका डिज़ाइन भी कुछ हम जनरली इसमें प्रिकॉशंस ये लेते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर लपेटे ना हो, सीधी रहे, ताकि पावर कंजप्शन पावर की वेस्टेज ना हो। तो इसमें भी कुछ ये कह लीजिए कि 3 मेन पार्ट्स हैं लीड्स के, कि एक कोर होती है बेसिकली जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फाइन वेरी फाइन वायर मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम बाउंडेड होती हैं। उसके ऊपर एक रबड़ ऐसे कह लीजिए रेनफोर्स किया होता है, और तीसरी उसके ऊपर कोटिंग होती है आउटर कोटिंग ऑफ रबड़। तो ये 3 बेसिकली ऐसे कह लीजिए पार्ट्स होते हैं लीड्स के। द नेक्स्ट इज व्हाट वी आर यूजिंग इज ग्राउंड क्लैंप्स। ग्राउंड क्लैंप्स हमारे ये हैं, ये वाला ग्राउंड क्लैंप या अर्थिंग क्लैंप, ठीक है ना, कि वर्क पीस के साथ जो हमारी केबल कनेक्ट की जाती है वो इस क्लैंप की हेल्प से की जाती है। ये क्लैंप बेसिकली हमारी जो तारें आ रही हैं, जो वर्क पीस वाली लीड है कॉपर या एल्युमिनियम की लीड है, उसको स्पेशल क्लैंप स्पेशल बोल्ट हुक या वेल्डिंग करके भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ क्लैंप्स, ठीक है ना। कुछ वेल्डिंग गेजेस भी यूज़ करते हैं हम
कि वेल्डिंग हमने जो की है वो सही करी है, कन्वेक्स तो नहीं है, कनकेविटी तो नहीं है, साइज उसका, रेनफोर्समेंट, तो ये कुछ गेजेस भी हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग को चेक करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द welding equipments and accessories we are using in the arc welding. I hope you have understand it. So go through the whole lecture and you will easily learn it. Thank you.